السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ سب؟ ارطغرل غازی سیزن 4 ایپیسوڈ نمبر 4 میں آپ کو خوش آمدید کرتا ہوں اور آپ سے گزارش کرتا ہوں میرے چینل ENT یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، لائک کریں، کامنٹ کریں، شیئر کریں اور نوٹیفیکیشن کا بیل ضرور دبائیں تاکہ میری آنے والی ویڈیوز آپ تک آسانی سے پہنچ جائے۔ تو آج ہم دیکھیں گے کہ سیزن 4 ایپیسوڈ نمبر 4 میں کیا ہونے جا رہا ہے۔ سعد الدین کوپیک کراجائسر قلعے میں جاتا ہے اور آرس اس کا شاندار استقبال کرتا ہے اور دونوں کھانے کی ٹیبل پہ بیٹھ جاتے ہیں۔ امیر سعد الدین کہتا ہے، آرس، آج تک میں نے اور تم نے اپنے اپنے ریاستوں کے لیے بہت سی قربانیاں دی ہیں، اب وقت آ گیا ہے کہ ہم کچھ اپنے بارے میں سوچیں۔ آرس کہتا ہے، آپ کے ساتھ کام کر کے مجھے بہت خوشی محسوس ہوگی، لیکن آپ کے دماغ میں کیا ہے؟ امیر سعد الدین کہتا ہے، حلّی بازار۔ چلو ہم حلّی بازار کو اپنی شراکت داری کا پھل بناتے ہیں، اگر ہم اسے مل کر چلائیں گے تو ہمارے لیے بڑی خوشحالی ہوگی۔ میں تمہیں حلّی بازار میں شراکت داری کی پیشکش کرتا ہوں۔ یہ سن کر آرس بہت خوش ہوتا ہے اور کہتا ہے، آپ کے ساتھ کام کرنا میرے لیے باعث شرف ہے، مجھے آپ کی پیشکش قبول ہے۔ ناظرین، اس کے بعد آپ دیکھیں گے جنگل میں آنتھیوس جو ارطغرل غازی کا علاج کر رہا ہے وہ ایک ڈاکو سے ملنے جاتا ہے۔ ڈاکو اسے بتاتا ہے کہ سمکو نے کہا ہے کہ وہ آرس کو مزید انتظار کروانا نہیں چاہتا، اور پھر وہ ڈاکو آنتھیوس کو ایک تھیلا دیتا ہے۔ آنتھیوس کہتا ہے، تو پھر میں نے جو ارطغرل غازی کی خدمت کی ہے اس کا انعام لینے کا وقت آ گیا ہے۔ تم سمکو سے کہنا فکر نہ کرے، ارطغرل اپنی مرضی سے اپنے قدموں پہ چل کر اس کے پاس آئے گا۔ پھر وہ اپنے اپنے راستے نکل جاتے ہیں۔ اس کے بعد ادھر غار میں ارطغرل غازی وضو بنا رہے ہیں، اتنے میں آنتھیوس وہاں آ جاتا ہے اور کہتا ہے، ارطغرل سردار، آپ کو میں نے کتنے بار کہا آپ بستر سے ابھی نہ اٹھیں، آپ کے زخم ابھی پوری طرح سے بھرے نہیں۔ ارطغرل غازی کہتے ہیں، آنتھیوس میں ٹھیک ہوں اور اب میں اپنے قبیلے واپس جانا چاہتا ہوں۔ اس پر آنتھیوس کہتا ہے، میں جانتا ہوں آپ انتقام کی آگ میں جل رہے ہیں، لیکن جنہوں نے آپ پر یہ جال بچھایا تھا ان کو آپ کی لاش نہیں ملی، وہ ابھی بھی آپ کی لاش تلاش کر رہے ہیں۔ یہ سن کر ارطغرل غازی کہتے ہیں، موت ہماری منزل ہے، اس کے آگے کچھ بھی نہیں۔ تم نے جو میرے لیے کیا ہے میں اسے زندگی بھر نہیں بھولوں گا۔ پھر آنتھیوس کہتا ہے، جنہوں نے آپ پر جال بچھایا ہے وہ بہت طاقتور لوگ ہیں، اسی لیے میں آپ کو اس حالت میں اکیلے جانے نہیں دوں گا۔ پھر آنتھیوس تھیلے سے کچھ کپڑے نکالتا ہے اور کہتا ہے، یہ میں گاؤں سے لے کر آیا ہوں آپ کے لیے، اور باہر میں نے گھوڑا بھی لایا ہے، وہ انتظار کر رہا ہے۔ آپ کا سفر لمبا ہے، میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گا۔ ارطغرل غازی کہتے ہیں، ٹھیک ہے آنتھیوس، میں نہیں جانتا میرا سفر کتنا طویل ہے، لیکن میری منزل واضح ہے، میں ان بدبختوں سے اپنا انتقام لے کے رہوں گا، وہ اس کی بڑی قیمت چکائیں گے۔ ادھر قبیلے میں حلیمہ سلطان اداس بیٹھی ہے، ارطغرل کو یاد کر رہی ہے، ارطغرل کے کپڑے ہاتھ میں لیے بیٹھی ہے اور بہت رو رہی ہے۔ گندوس اپنے چھوٹے بھائی سافجی کو دیکھ رہا ہے، پھر وہ کہتا ہے، میرے بھائی، کیا تمہیں بابا کی یاد نہیں آتی؟ مجھے تو بابا کی بہت یاد آتی ہے۔ پھر وہ اٹھ کھڑا ہوتا ہے، ارطغرل کے کپڑے لاتا ہے اور کپڑوں کو سونگھتے ہوئے کہتا ہے، مجھے اب بھی بابا کی خوشبو ان کپڑوں میں آتی ہے، مجھے جب بھی بابا کی بہت یاد آتی ہے تو میں ان کی خوشبو لیتا ہوں، لو تم بھی بابا کی خوشبو لو۔ یہ کہتے ہوئے ارطغرل کے کپڑے وہ اپنے بھائی کے اوپر ڈال دیتا ہے۔ پھر گندوز حلیمہ سلطان کے پاس جاتا ہے جو بہت رو رہی ہے، کہتا ہے، امی جان آپ مت روئیں، آپ کیوں رو رہی ہیں؟ میں آپ کی اور میرے چھوٹے بھائی کی دونوں کی حفاظت میں کروں گا۔ حلیمہ سلطان یہ سن کر گندوز کو گلے لگا لیتی ہے اور کہتی ہے، تم ٹھیک کہہ رہے ہو بیٹا۔ ادھر جنگل میں آنتھیوس اور ارطغرل سردار ایک ندی کے پاس سے گزر رہے ہیں۔ آنتھیوس کہتا ہے، ارطغرل سردار، ہم گھوڑوں کو یہاں آرام دیتے ہیں، رات ہم گاؤں میں گزاریں گے، یہاں پر میرے جاننے والے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے وہ ندی پار کرتے ہیں اور دونوں گھوڑے سے اتر جاتے ہیں۔ ارطغرل سردار منہ دھونے کے لیے ندی کے قریب جاتے ہیں، پھر وہ محسوس کرتے ہیں کہ کچھ خطرہ ہے، پھر اپنی آنکھیں دوڑانے لگتے ہیں۔ اتنے میں غلام فروش سمکو وہاں آتا ہے اور دوسری جانب سمکو کے آدمی بہت سارے غلام لے کر آتے ہیں۔ یہ دیکھ کر ارطغرل سردار فوراً کھڑے ہو جاتے ہیں۔ سمکو کے آدمی چاروں طرف سے تلواریں نکال کر ارطغرل سردار کو گھیر لیتے ہیں۔ آنتھیوس کہتا ہے، ارطغرل سردار، آپ نے کہا تھا منزل بہت دور ہے، لیکن منزل اتنی بھی دور نہیں جتنا آپ کو لگ رہا تھا۔ یہ سن کر ارطغرل سردار مسکراتے ہیں۔ ادھر کراجائسر قلعے میں تیکفر آرس اور امیر سعد الدین حلّی بازار کے معاہدے کے بارے میں بات چیت کر رہے ہوتے ہیں۔ آرس کہتا ہے، تاجر بھاگ رہے ہیں کیونکہ ان کے قافلے لوٹ لیے جا رہے ہیں۔ یہ سن کر امیر سعد الدین کہتا ہے، آرس، میں نے اپنا وعدہ پورا کر دیا، اب تمہاری باری ہے۔ فارس سے، حلب سے، حتیٰ کہ چین سے آنے والے قافلے یہ راستوں سے گزر کر حلّی بازار میں ٹھہرتے ہیں۔
اور हनली बाजार में सोने का भाव काई कबीले के हाथों से लेना होगा। जब दुंदार सख्त मुश्किल में फंसेगा तो मुझसे मदद मांगने आएगा, तब मैं उसे हनली बाजार बेचने का मशवरा दूंगा और इसी दौरान मैं अपना भरोसे का आदमी लेकर आऊंगा जो हनली बाजार पे कब्जा कर लेगा। ये सुनकर आरिस कहता है, इसका मतलब ये है कि आपके आदमी के साथ मिलकर हमें हनली बाजार को चलाना है। अमीर सादुद्दीन कहता है, ये तुम पर है कि तुम्हारे लिए हनली बाजार कितना कीमती है। इस पर आरिस कहता है कि आप मेरे सोने से बाजार खरीदने वाले हैं, तो मैं चाहता हूं कि बाजार के सोने के मामलात मेरा आदमी देखे। आरिस की ये शर्त सादुद्दीन कबूल कर लेता है और दोनों के माबैन मामला तय पा जाता है। फिर कोपेक खड़े होकर आरिस से हाथ मिलाता है। इतने में मारिया वहां आती है। मारिया की खूबसूरती देखकर अमीर सादुद्दीन की नजरें उस पर रुक जाती हैं और कहता है, आरिस तुम जानते हो कि खूबसूरत चीजों को कैसे हासिल किया जाता है। उसके बाद कोपेक वहां से चला जाता है। इधर जंगल में सिमको अर्तुरुल गाजी से कहता है, जिसने तुम्हें ढूंढा, तुम्हारा इलाज किया और तुम्हें मौत से बचाया, वो तुम्हें तुम्हारे नए मालिक सिमको के हवाले करेगा। अब तुम्हारी जिंदगी और रूह दोनों मेरी है। ये सुनकर अर्तुरुल गाजी कहते हैं, मेरा जिस्म और मेरी रूह तुम जैसे गीदड़ की गुलामी के लिए नहीं है। ये सुनकर सिमको कहता है कि इसे पकड़ लो। फिर अर्तुरुल और सिमको के आदमियों में लड़ाई शुरू हो जाती है। जख्मी होने के बावजूद अर्तुरुल काफी आदमियों को मार गिराते हैं। ये देखकर बाकी गुलाम भी खुश हो जाते हैं। उसी दौरान सिमको का आदमी घोड़े पे बैठे हुए रस्सी फेंकता है। वो रस्सी अर्तुरुल सरदार के गर्दन से होते हुए पेट तक जाती है, लेकिन अर्तुरुल सरदार जोर से रस्सी को खींचते हैं। सिमको का आदमी नदी में जा गिरता है और फिर दोबारा अर्तुरुल सरदार की लड़ाई शुरू हो जाती है। कुछ देर लड़ाई के बाद जख्मी होने की वजह से अर्तुरुल सरदार सिमको के आदमियों की गिरफ्त में आ जाते हैं। इधर काराजाइसर के सहन में अमीर सादुद्दीन गोगतो से पूछता है, क्या बहादुर साहब की कोई खबर है। गोगतो बताता है, वो बहुत जल्द कबीले पहुंचने वाले हैं। अमीर सादुद्दीन कहता है, उन्हें आने दो। आरिस के दिए हुए सोने से हानली बाजार खरीदूंगा और बहादुर साहब को इस सरजमीनों का सरदार आला बनाऊंगा ताकि वो सिर्फ मेरे मातहत हो। फिर गोगतो सर झुकाता है और घुटनों के बल जमीन पर बैठ जाता है। अमीर सादुद्दीन गोगतो की पीठ पर पैर रखकर घोड़े पर चढ़ता है। इधर किले के अंदर आरिस मारिया के साथ होता है। कमांडर लुकास आकर कहता है, डाकुओं का सरदार मिहालिस आया है। आरिस कहता है, उसे अंदर भेज दो और मारिया वहां से चली जाती है। मिहालिस अंदर आता है। आरिस उसे कहता है, मैं तुम्हें यहाँ बड़े डाकों में मसरूफ करना चाहता हूँ। अपने मजीद आदमी इकट्ठे करो और तुर्कों के दिलों में डाकुओं का खौफ बिठा दो। जो आपका हुक्म कहकर मिहालिस वहां से चला जाता है। फिर तेकफुर आरिस अपने कमांडर लुकास से कहता है, दुंदार को पैगाम भेजो कि मैं उसे हनली बाजार में मिलना चाहता हूँ। इधर जंगल में सिमको आंथियुस से कहता है, आरिस की रियासत में हलचल मचाने का वक्त आ गया है और किले में हमारी फाख्ता को भी कार्रवाई करनी होगी। और इस तरह आरिस को पता चलेगा अर्तुरुल सरदार अभी तक जिंदा है, वो अपने ही किले में महफूज नहीं है। आंथियुस कहता है, अगर आरिस ने वो सोना देने से इनकार कर दिया जो हम अर्तुरुल के बदले मांगेंगे, तो सिमको हंसता है और फिर सिमको आंथियुस से कहता है कि इस सूरत में सुल्तान अलाउद्दीन को पता चलेगा कि उसके सरदार आला को आरिस ने घात लगाकर हमला किया था। ये आरिस हरगिज नहीं चाहेगा। खौफजदा आरिस को होना चाहिए, हमें नहीं। अब तुम गार में जाओ और मेरे हुक्म का इंतजार करो। फिर सिमको अर्तुरुल के पास जाता है। सिमको का आदमी अर्तुरुल गाजी पर तलवार रख देता है। अर्तुरुल गाजी कहते हैं, सिमको कभी ये नहीं समझना कि मैं झुक गया। तुमने मेरे हाथ पैर तो बांध दिए, लेकिन मैं तुम्हें अपने दांतों से चबा डालूंगा। ये सुनकर सिमको कहता है, तो मैं तुम्हारे दांत तोड़ दूंगा। ये सुनकर अर्तुरुल गाजी कहते हैं, तुम क्या चाहते हो। ये सुनकर सिमको बाकी के गुलामों की तरफ देखते हुए कहता है, मेरा तुम्हें इन काबिल रहम कुत्तों की तरह गुलामों के बाजार में बेचने का इरादा बिल्कुल नहीं है। तुम्हारा मालिक पहले से तय है। ये सुनकर अर्तुरुल गाजी कहते हैं, इसका मतलब है कि तुम जानते हो मुझ पर हमला करने वाला कौन है और अब तुम मुझे उसके यहाँ बेचने का इरादा रखते हो। यह सुनकर सिमको खड़ा हो जाता है और कहता है, अर्तुरुल साहब फिक्र ना करें, सब कुछ वाज़ेह हो जाएगा। फिर वो अपने घोड़े पर बैठकर आगे बढ़ने लगता है और सिमको के आदमी कैदियों को लेकर उसके पीछे पीछे जाते हैं। उसके बाद आप देखेंगे हानली बाजार में दुंदार और हकीम आर्तुक ताजिरों से मुलाकात करते हैं और उनकी तिजारत के बारे में पूछते हैं। ताजिर डाकुओं के हमले की शिकायत करते हैं और कहते हैं, इन हमलों की वजह से तिजारत बहुत सुस्त हो गई है। इस पर दुंदार कहता है, आप फिक्र ना करें, इंशाअल्लाह बाजार बहुत जल्द पहले जैसी हालत में आ जाएगा। इसके बाद दुंदार और हकीम आर्तुक और अली को
वहाँ से आगे बढ़ते हैं। फिर ताजिर अली को दुंदार से कहता है, डाकुओं के खौफ की वजह से यूनानी ताजिर बाज़ार छोड़कर चले गए हैं। इस पर हकीम आर्तुक कहते हैं, रिस्क देना अल्लाह का काम है, ताजिरों का नहीं। अगर अल्लाह एक दरवाज़ा बंद करता है तो दूसरा खोल देता है। इतने में एक सिपाही वहाँ पर आता है और दुंदार से कहता है, गवर्नर आरिस आपसे मिलना चाहता है। तो दुंदार कहता है, हम उन्हें खुशामदीद कहते हैं। इसके बाद आप देखेंगे जंगल में अरतुरुल गाजी और तमाम कैदी गुलाम फरोश सिमको की कैद में जंगल से गुजर रहे होते हैं। अरतुरुल गाजी सिमको के आदमी के पास मौजूद उस चाबी को देख रहे हैं जो कि अरतुरुल गाजी और तमाम कैदियों में पड़ी जंजीरों की चाबी है। और वहाँ पर मौजूद एक कैदी अरतुरुल गाजी से कहता है कि तुम जिस तरह लड़े और जिस तरह तुम नज़र देखते हो, तुम वाकई में एक शेर हो। मेरा नाम पेटू है, मैं एक चोर था और हम सब इस गुलाम फरोश के चुंगल से भागने की कोशिश कर रहे हैं। और हम सब ने देखा तुम इतने बहादुर हो कि तुम्हें गुलामाना ज़िंदगी पसंद नहीं है, इसलिए अगर तुम भागे तो हम सब भी तुम्हारे साथ हैं। ये सुनकर अरतुरुल गाजी कहते हैं, अगर तुम चोर थे तो आखिरी दफ़ा तुम्हें अपना हुनर इस्तेमाल करना होगा, मुझे वो चाबियां लाकर दो। तो पेटू कहता है, मैं ये करूँगा और तुम सबको इससे आज़ाद करूँगा, लेकिन याद रखना हम सब का मुक़द्दर तुम्हारे हवाले है। उसी दौरान सिमको और पेटू को अरतुरुल गाजी से बात करते हुए देख लेता है और कहता है, मैंने तुम्हें कहा नहीं था इस आदमी से कोई बात नहीं करना, और अपने आदमी से कहता है कि इसे कोड़े मारो। सिमको का आदमी ये सुनकर पीटों पर कोड़ों की बरसात कर देता है। इसके बाद कोपेक जंगल में शिकार कर रहा होता है। वो एक ही तीर में एक बेहतरीन भेड़ का शिकार कर लेता है और अपने सिपाहियों से कहता है, मेरा शिकार आज रात के खाने में पेश किया जाए। उसी दौरान गोप्तो वहां आता है और कहता है, अमीर हजरत बहादुर साहब पहुंच गए हैं। सादुद्दीन कहता है, बहुत खूब, उन्हें खुद को अपने बाप दादाओं के खैमे में आबाद करना होगा, हमें उनसे बहुत सी अहम चीज़ें तय करना है। उसके बाद आप देखेंगे चावदार कबीले में असलहान खातून मौजूद है, वो अपने बाल संवार रही है। उसी दौरान चावदार कबीले के ढोल बहुत ज़ोर ज़ोर से बजने लगते हैं और खैमे के बाहर से किरजा अंदर आने की इजाज़त चाहता है। असलहान खातून कहती है, किरजा वहीं से बताओ क्या बात है। इस पर किरजा कहता है, बहादुर साहब और उनका बेटा संचार अभी अभी कबीले में दाखिल हुए हैं। ये सुनकर असलहान खातून परेशान हो जाती है और कहती है, बहादुर जहाँ भी जाता है बुराई का घोंसला बनाता है, अल्लाह हम पर रहम करे। उसी दौरान बहादुर अपने घर वालों और सिपाहियों के साथ चावदार कबीले में दाखिल होता है और उसके सिपाही हू हा के नारे लगा रहे होते हैं और कबीले के लोग उनका पुरजोश इस्तकबाल करते हैं। जबकि असलहान खातून अपने खैमे के सामने खड़ी होकर ये सब मनाजिर देख रही है। बहादुर कहता है, इंशाअल्लाह अब हम कभी जुदा नहीं होंगे। और फिर बहादुर सरदारी खैमे के सामने आकर अपना घोड़ा रोक लेता है और फिर कबीले के सारे लोग वहां जमा हो जाते हैं। बहादुर कहता है, मैं अपनी फतह में चारदार कबीले को शामिल करने आया और इंशाअल्लाह मज़ीद फतूहात हासिल करने आया हूँ। माल गनीमत तमाम लोगों में बाद में बांटा जाएगा। ये सुनकर वहाँ पर मौजूद सारे लोग बहादुर साहब जिंदाबाद के नारे लगाना शुरू कर देते हैं। ये देखकर असलहान खातून को बहुत गुस्सा आता है। उसके बाद बहादुर घोड़े से उतरता है और असलहान खातून के पास जाता है। असलहान खातून खुशामदीद कहती है। बहादुर कहता है, मुझे यहाँ आकर बहुत खुशी हुई असलहान खातून। और फिर बहादुर कहता है, मैंने सुना है मेरे मरहूम भाई जानदार साहब की अमानत को तुमने अपने आप पर ले लिया है। ये सुनकर असलहान खातून कहती है, जी बिल्कुल, अल्लाह के हुक्म से मैंने अपने मरूसी हक़ का मुतालिबा रखा है, इसलिए मैं आपको अपने खैमे में खुशामदीद कहती हूँ। इसी के साथ यहाँ पर सीज़न 4 एपिसोड नंबर 4 का इख्तिताम होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन का बेल ज़रूर दबाएं। अस्सलाम वालेकुम।